Hello everyone, welcome back to my channel. This is Seema Sani. I hope you all are good. So students, today we are going to start a new chapter from class 10, book Footprints Without Feet. That is chapter number 7, The Necklace. Okay, written by Guy de Maupassant. Guy de Maupassant is a French small story writer. Okay, so Guy de Maupassant, this is a French name. Okay, so first of all, we'll discuss about the main characters of this chapter, introduction and then detailed summary. Okay. So let's start with main character. First character, Matilda Loisel. Okay. So Matilda Loisel, this is a French name. Okay. So Matilda Loisel, a young pretty lady but selfish. ठीक है, वो young और pretty lady थी but वो बहुत ज़्यादा selfish थी. Okay. Monsieur Loisel, Matilda Loisel's husband. ठीक है. So Monsieur Loisel, this is also French name. Okay. So Matilda की husband है Monsieur Loisel. Okay. A kind, generous, loyal and hardworking man. Okay, he is a clerk at the Ministry of Education. ये Ministry of Education में clerk है, having no wealth or status and wants to please his wife. ठीक है, उनके पास ना तो कोई अच्छा status है, ठीक है, और ना ज़्यादा wealth है, लेकिन वो अपनी wife को please करना चाहते हैं. MME means this its pronunciation is me. Okay, and its meaning is madam. Okay, so Madame Frostier. This is also French name. Okay, so Madame Frostier, Matilda's friend, who is rich, kind and generous lady. ठीक है, so Madame Frostier Matilda की friend है, rich है, kind है और बहुत ज़्यादा generous lady है. Okay, Matilda's parents. Okay, so introduction of the chapter. The story revolves around a selfish lady named Matilda. Okay, ये story revolve करती है एक selfish lady के जिसका नाम है Matilda. Okay. She is unsatisfied with her husband. Okay, she is unsatisfied with her life as she wants a rich husband. वो बहुत ज़्यादा unsatisfied है अपनी लाइफ से, satisfied नहीं है अपनी लाइफ से क्योंकि उसको एक बहुत ही rich husband चाहिए. But because she belongs to a family of clerk, okay, and her family is unable to give dowry, she is married to a clerk. Okay, but वो एक बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती है. ठीक है, क्लर्क की फैमिली से बिलोंग करती है और उनकी फैमिली अनेबल है डाउरी देने में. ठीक है, इसलिए उनकी मटिल्डा की मैरिज क्लर्क के साथ हो जाती है. ओके, सो वन डे बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ आर इनवाइटेड टू अ पार्टी एट द मिनिस्टर्स हाउस. ठीक है, सो एक दिन मटिल्डा और मटिल्डा के हस्बैंड को एक पार्टी में बुलाया जाता है मिनिस्टर के घर में. ठीक है, but Matilda does not have good clothes and jewels to wear at such a party. लेकिन Matilda के पास अच्छी ज्वेलरी और अच्छे कपड़े नहीं होते हैं पहनने के लिए. ठीक है, कि वो पार्टी पे जाएं और उसको वो चाहती थी कि उसके पास अच्छी ज्वेलरी और अच्छे कपड़े हो जिसकी वजह से वो पार्टी को ज्वाइन कर सके. Her husband suggests her to buy a dress and ask an old friend for jewelry. ठीक है, तो उसके हस्बैंड उसको सजेस्ट करते हैं कि वो अपने लिए एक अच्छी ड्रेस खरीद ले. ठीक है, और अपनी रिच फ्रेंड से वो ज्वेलरी क्या करे, बोरो कर ले. शी देन बोरोज अ नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड. तब वो अपनी फ्रेंड से क्या करती है, नेकलेस को बोरो करती है एंड गोज टू द पार्टी और पार्टी में जाती है. व्हाट हैपन्स नेक्स्ट प्रूव्स टू बी अ लेसन फॉर द अनहैप्पी लेडी. ठीक है, आगे देखते हैं कि इस लेसन में क्या होता है. ठीक है, उसको लेसन मिलता है या फिर उस अनहैप्पी लेडी के साथ यहाँ पे क्या होता है. ओके, सो डिटेल समरी. MME. ओके, इट्स प्रोनाउंसिएशन इज मी एंड मीनिंग इज मैडम. ओके, सो मैडम Matilda, दिस इज फ्रेंच नेम. ओके, मैडम Matilda Loisel lived in an apartment with her husband, okay, M. Loisel, and was very unhappy and unsatisfied with what life had given her. Okay, so MM Loisel, Madam Loisel, ठीक है, Matilda Loisel एक अपार्टमेंट में अपने हस्बैंड के साथ रहती है, M. Loisel के साथ. ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी है. ठीक है, सेटिस्फाइड नहीं है अपने लाइफ के साथ. ठीक है, शी वॉज अनहैप्पी विद द अपार्टमेंट शैबी वॉल्स एंड द वॉर नॉट फर्नीचर. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी है क्योंकि उनका जो अपार्टमेंट है उसके वॉल्स बहुत ज़्यादा शैबी है. ठीक है, और उसके अंदर जो फर्नीचर है वो बहुत ही वॉर नॉट है, टूटा फूटा है. ठीक है, शी वॉज ऑल्सो इरिटेटेड बाय द वे हर हस्बैंड रिएक्टेड टू द होममेड फूड. ठीक है, और बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है जब उसके हस्बैंड रिएक्ट करते हैं होममेड फूड के लिए. ठीक है, उस वे को
वो पसंद नहीं करती है कि उसके हस्बैंड किस तरह से होममेड खाना पसंद करते हैं, ठीक है। वाइल शी ड्रीम्ड ऑफ रॉयल डिनर, जब रॉयल डिनर, ठीक है, लेकिन मेटिल्डा रॉयल डिनर चाहती है, बीइंग सर्व्ड इन द एक्विजिट सिल्वर डिशेस, और वो चाहती है कि उसको सर्व किया जाए वो सारा खाना किसमें, सिल्वर डिशेस में। से देवर नीदर रिच नॉर पुअर, ठीक है, वो ना तो ज़्यादा पुअर थे और ना ही ज़्यादा रिच थे, ओके। शी हैड टू मैरी अ क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन सच जस्ट बिकॉज हर फैमिली couldn't afford to give her dowry, ओके। सो वो एक क्लर्क के साथ उसकी मैरिज करवा देते हैं उसके पेरेंट, ठीक है, जो कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन में क्लर्क का काम करते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ हर फैमिली couldn't afford to give her dowry, ठीक है। सो उनकी जो फैमिली थी, मेटिल्डा की जो फैमिली थी, वो इतनी ज़्यादा रिच नहीं थी, ठीक है, वो डाउरी को अफोर्ड नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो क्लर्क के साथ उनकी मैरिज कर देती है। शी ऑल्सो विजिटेड हर ओल्ड फ्रेंड मैडम जीन, ओके, मैडम जीन फॉरेस्टियर, उनकी रिच फ्रेंड थी जिसका नाम था मैडम जीन फॉरेस्टियर। तो दिस इज ऑल्सो फ्रेंच नेम, ओके। सो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मेटिल्डा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वो अपनी रिच फ्रेंड के घर जाए जिनका नाम था मैडम जीन फॉरेस्टियर, ओके, क्योंकि वो रिच थी इसलिए वो नहीं चाहती थी कि वो उसके घर जाए, ओके। सो एज शी वॉज रिच लेडी एंड मेटिल्डा एनविड हर, वो बहुत ज़्यादा रिच थी उसकी फ्रेंड, इसलिए मेटिल्डा उनसे बहुत ज़्यादा जेलस फील करती थी। Whenever she visited her, she became sad and cried for days together. जब भी मेटिल्डा अपनी उस रिच फ्रेंड के घर पे जाती थी, ठीक है, वो बहुत दिनों तक बहुत ज़्यादा सैड रहती थी और क्राई करती रहती थी, ठीक है। सो वन डे व्हेन her husband returned home, okay, from work, he got an invitation to a party at the house of minister public instruction, okay. so एक दिन उसके हस्बैंड जब काम से वापस आते हैं घर पे, ठीक है, तो वो पार्टी का इनविटेशन लेके आते हैं जो कि उनको मिनिस्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन से मिला होता है, ठीक है। कॉन्ट्रेरी टू हिज एक्सपेक्टेशन, मेटिल्डा वॉज इरिटेटेड एंड एंग्री एंड थ्रू द कार्ड अवे, ठीक है, वो कार्ड अपनी वाइफ को देते हैं, ठीक है, और वो उनको लगता है कि उनकी वाइफ को वो सरप्राइज देंगे और उनकी वाइफ बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी, लेकिन इसके अपोजिट होता है, उनकी वाइफ बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है और उस कार्ड को वो फेंक देती है और बोलती है कि आप अपने कुलीग को, अपने कुलीग की जो वाइफ है उनको वो कार्ड दे दे, ठीक है, क्योंकि वो नहीं जाना चाहती है पार्टी में। शी वॉज अपसेट बिकॉज शी डिडंट हैव एनीथिंग, ओके, टू वेयर एट सच एन एक्सट्रावेजेंट पार्टी, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी थी, वो अपसेट थी। वो इसलिए अपसेट थी क्योंकि उसके पास एक्सट्रावेजेंट पार्टी में जाने के लिए कुछ भी अच्छा पहनने के लिए नहीं था। हर हस्बैंड गेव हर 400 francs to buy a new dress, okay, that he had been saving to buy a gun so that he could go hunting with his friends, ठीक है। तो वो अपनी वाइफ से पूछते हैं कि उनकी ड्रेस कितने की आएगी, ठीक है, तो उनकी वाइफ बताती है कि उसकी ड्रेस 400 francs की आएगी। तो मेटिल्डा की हस्बैंड ने 400 francs बचा के रखे होते हैं क्योंकि उनको एक गन खरीदनी होती है ताकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ हंटिंग पे जा सके, ठीक है। तो वो 400 franc अपनी वाइफ को दे देते हैं, ओके, जो उन्होंने अपनी गन के लिए सेव किए करके रखे होते हैं। आफ्टर बाइंग द ड्रेस शी वॉज सैड बिकॉज शी डिड नॉट हैव ज्वेलरी टू मेक हर सेल्फ लुक मोर अपीलिंग एंड अट्रैक्टिव, ओके। सो जब वो 400 franc में ड्रेस ले लेती है, ठीक है, उसके बाद भी वो अनहैप्पी होती है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद उसको ज्वेलरी चाहिए, क्योंकि वो चाहती है कि वो बहुत ही अपीलिंग और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे और पार्टी में सबसे सुंदर दिखे और सभी का ध्यान उसकी तरफ हो, ठीक है। सो हर हस्बैंड सजेस्टेड दैट शी कुड बोरो ज्वेलरी फ्रॉम हर फ्रेंड, ओके, मैडम फ्रॉस्टियर। तो उसके हस्बैंड उसको सजेस्ट करते हैं कि वो अपनी रिच फ्रेंड मैडम फ्रॉस्टियर से वो ज्वेलरी को बोरो कर ले, ओके। सो व्हेन मैडम लॉइजल वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड डिस्क्राइब द सिचुएशन, शी शोड हर द cupboard and asked her to choose whatever she liked, okay। जब मैडम लॉइजल अपनी फ्रेंड के घर जाती है, ठीक है, और वहाँ पे डिस्क्राइब करती है सिचुएशन के बारे में, ठीक है, तो उसकी जो रिच फ्रेंड होती है वो पूरा कपबोर्ड खोल के रख देती है और बोलती है कि जो भी आपको पसंद है वो आप चूज कर लो, ठीक है। सो मेटिल्डा चूज अ प्रीशियस डायमंड नेकलेस,
विच वॉज केप्ट इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स। ठीक है, सो मैटिल्डा जब कपबोर्ड में देखती है, ठीक है, तो कपबोर्ड में उसको कुछ भी पसंद नहीं आता है, तो पूछती है कि आपके पास कुछ और हैं। ठीक है, तो मैटिल्डा की फ्रेंड उसको कुछ और दिखाती है। ठीक है, तो मैटिल्डा चूज करती है प्रीसियस डायमंड नेकलेस को। ठीक है, जो कि एक ब्लैक सैटिन बॉक्स में रखा होता है। ओके, so they went to the minister's party and all of men admired her, okay, as she was looking gorgeous in her new dress and jewelry. तो जैसे वो पार्टी में जाते हैं, मिनिस्टर की पार्टी में, ठीक है, तो सारे मैन उसको एडमायर करते हैं और उसको देखे, बिकॉज वो कैसे दिख रही थी, बहुत ज़्यादा गॉर्जियस दिख रही थी उस प्रिटी ड्रेस में। ठीक है, और उस ज्वेलरी में, तो सारे जितने भी मैन हैं, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा प्रिटी दिख रही हो। दे रिटर्न एट 4 in the morning, ओके, और वो 4 o'clock पे मॉर्निंग में घर पहुंचते हैं। बाय दैट टाइम M. Loisel had already dozed off in one of the rooms with 3 other men, okay. So इस बीच में जो M. Loisel थे, ठीक है, ऑलरेडी अपने 3 मैन फ्रेंड के साथ, ठीक है, एक आउटर में एक छोटा सा रूम था, उसके अंदर वो सो चुके थे। ठीक है, अपनी नींद ले चुके थे, क्योंकि उन तीनों फ्रेंड्स के साथ जिनके साथ वो सोए थे, ठीक है, उन तीनों फ्रेंड की वाइफ्स भी पार्टी में इंजॉय कर रही थी, इसलिए वो एक छोटे से रूम में वहाँ पे नींद लेने के लिए चले गए थे। ओके, दे डिसाइडेड टू लीव एंड कुडंट फाइंड कैरियर्स। अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो वहाँ से चले जाएंगे, लेकिन उनको कैरियर्स नहीं मिल रहा था। फाइनली आफ्टर वॉकिंग फॉर अ वाइल दे गॉट अ कैरियर्स। अब थोड़ी देर चलने के बाद, ठीक है, उनको कैरियर्स मिलता है। जब वो वेट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे मैटिल्डा के जो हस्बैंड होते हैं मिस्टर लॉयजल, ठीक है, तो वो एक रैप लेते हैं और उसके शोल्डर पे रख लेते हैं, ताकि उसकी जो ज्वेलरी है, उसका जो नेकलेस था, वो दिख ना सके किसी को। ठीक है, लेकिन मैटिल्डा को पसंद नहीं आता है, क्योंकि मैटिल्डा के ड्रेस के साथ वो जो शॉल होता है वो मैच नहीं करता है। ठीक है, तो वो वहाँ से चली जाती है। ओके, फाइनली आफ्टर वॉकिंग, थोड़ा सा दूर चलने के बाद दे गॉट अ कैरियर्स, उनको कैरियर्स मिल जाता है। ठीक है, विच ड्रॉप देम राइट आउटसाइड देयर डोर, जो कि उनको ड्रॉप करता है बिल्कुल उनके डोर के सामने। मैटिल्डा रियलाइज दैट शी डिड नॉट हैव द नेकलेस। अब मैटिल्डा घर के अंदर जाती है, ठीक है, मिरर देखती है और वो रियलाइज करती है, वो चाहती है, जैसे कि सभी लेडीज करती है, कि लास्ट टाइम वो मिरर के सामने खड़ी हो जाती है, फिर से देखना चाहती है कि वो कैसे दिख रही है। ठीक है, तो मैटिल्डा भी वैसे करती है, मिरर के सामने खड़ी हो जाती है और वो देखती है, लेकिन नेकलेस उसके गले में नहीं होता है। ओके, तो M. Loisel went out to search the railway tracks for the necklace। ठीक है, वो जोर से चीखती है मिरर के सामने, तो M. Loisel आते हैं। ठीक है, और M. Loisel उन सभी ट्रैक्स पे जाते हैं जिन जिन से वो आए थे। ठीक है, वो रेलवे ट्रैक पे जाते हैं नेकलेस ढूंढने के लिए। एंड M. Loisel went टू द पुलिस स्टेशन। फिर वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, कैब ऑफिस जाते हैं, एंड ऑल्सो गिव एन एडवर्टाइजमेंट फॉर रिवॉर्ड टू द पर्सन हु रिटर्न द नेकलेस। ठीक है, और वो एक एडवर्टाइजमेंट देते हैं, ठीक है, कि जो भी रिटर्न करेगा उनके नेकलेस को, ठीक है, उनको एक बहुत अच्छा प्राइज मिलेगा। मीनवाइल he told his wife to tell her friend that the clasp of necklace had broken and had given it for the repair। ठीक है, इसी बीच में M. Loisel अपनी वाइफ मैटिल्डा को सजेशन देते हैं कि वो राइट करे उनके लिए। ठीक है, तो वो लिखवाते हैं और वो राइट करती हैं। ठीक है, और लिखते हैं कि आप ये लिखो कि उनका जो नेकलेस है वो टूट गया है, वो रिपेयर के लिए दिया गया है, तो वो थोड़ा टाइम बाद उसको वापस कर देंगे। After a week, when the necklace could not be found, they decided to replace it with a similar one। ठीक है, जब 1 वीक के बाद भी वो नेकलेस नहीं मिलता है, ठीक है, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो बिल्कुल वैसा ही नेकलेस उसके बदले में खरीदेंगे। ओके, ताकि वो उसको रिप्लेस कर सके। दे फाउंड अ सिमिलर नेकलेस, ठीक है, प्राइस्ड एट 36 francs। अब वो बिल्कुल वैसा ही डुप्लीकेट, बिल्कुल ठीक उसी तरह का नेकलेस उनको मिल जाता है, लेकिन उसकी प्राइस 36,000 होती है, 36,000 फ्रैंक होती है। ठीक है, फॉर्चुनेटली M. Loisel had inherited 18,000 francs from his father, okay, and the rest he borrowed। ठीक है, तो फॉर्चुनेटली 18,000 फ्रैंक मिस्टर लॉयजल के पास ऑलरेडी होते हैं, क्योंकि फॉर्चुनेटली उनके फादर ने उनको दिए होते हैं। ठीक है, और
18,000 उनको बोरो करने पड़ते हैं, ठीक है। सो उनको बहुत सारे मनी लैंडर्स के पास जाना पड़ता है, ठीक है, और उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे वो मनी बोरो करते हैं, ओके। सो मिस्टर जो लॉयजल थे मैटिल्डा के हस्बैंड, वो अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा लव करते थे, इसीलिए वो इतनी सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। इट टुक देम 10 years टू रिपे ऑल द लोन्स एंड इन दीज ईयर्स देयर लाइफ्स चेंजेस ड्रेस्टिकली, ठीक है। और ये लोन रिपे करने के लिए उनको 10 years लग जाते हैं, ठीक है। और इससे उनकी लाइफ में एक ड्रेस्टिकल चेंज आ जाता है। दे मूव टू अ स्मॉलर अपार्टमेंट, ओके, एंड रिमूव द मेड, ठीक है। अब वो स्मॉलर अपार्टमेंट में चले जाते हैं, ठीक है। और जितनी भी उनके घर में मेड होती है उनको वो रिमूव कर देते हैं, वहाँ से हटा देते हैं। मेटिल्डा कुक्ड फूड एंड वॉश द क्लोथ्स एंड हरसेल्फ, ठीक है। अब मेटिल्डा घर में मेड नहीं होती है तो मेटिल्डा सारा काम करती है, क्योंकि मनी नहीं होते हैं, ठीक है। अब वो लोन पे होते हैं, तो मेटिल्डा ने उस टाइम पे उनको 10 years लग गए थे लोन पे करने के लिए, ठीक है। तो उस टाइम पे मेटिल्डा खुद अपने घर का काम करती है, खाना बनाती है, ठीक है, घर में वॉशिंग करती है, ठीक है, कपड़े क्या करती है, वॉश करती है, ठीक है। इवन एम लॉयजल वर्क मल्टीपल जॉब्स, ओके, टू रिपे द बोरोड मनी। और इस टाइम पे एम लॉयजल को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, उनको मल्टीपल जॉब्स करनी पड़ती है ताकि वो रिपे कर सके उस बोरो किए हुए मनी को। इन दीज ईयर्स मैडम लॉयजल स्टार्टेड लुकिंग मच ओल्डर, ओके। इस टाइम पे उनके ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन आ गया था उस टाइम पे, ठीक है। तो एम लॉयजल को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था, ठीक है। अब इतनी ज़्यादा केयर नहीं कर पा रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा ओल्डर दिखने लगी थी। अभी वो बहुत ज़्यादा प्रीटी हुआ करती थी, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा ओल्डर दिखने लगी थी, अपने घर का काम खुद करने लगी थी, उनके हैंड रेड हो जाते थे, ठीक है। और उनके जो हेयर थे, ठीक है, हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, और उनके हेयर भी बैडली ड्रेस्ड होते थे, वो अच्छे से अपनी केयर नहीं करती थी, ठीक है। हर वॉइस बिकेम लाउड, और उनकी वॉइस बहुत ज़्यादा लाउड होगी तो बहुत ज़्यादा जोर से बोलती थी। एंड शी बिकेम अ नॉर्मल पर्सन, और बहुत ज़्यादा नॉर्मल पर्सन बन चुकी थी अब वो, ठीक है। हु वुड कैरी अ बास्केट टू द ग्रॉसरी स्टोर, ठीक है, वो अपनी बास्केट को कैरी करके जाती थी ग्रॉसरी स्टोर पे, ओके। द बचर स्टोर, ठीक है, एंड द फ्रूट स्टोर टू बाय देयर डेली सप्लाईज, ठीक है। अपनी डेली सप्लाई के लिए वो इन सभी स्टोर्स पे अपनी बास्केट के साथ जाया करती थी। वन डे शी मैट हर फ्रेंड जीन, ओके। तो एक दिन अपनी फ्रेंड जीन के साथ मिलती है, ठीक है, हु वॉज विद द चाइल्ड एंड डिसाइडेड टू टेल हर द ट्रूथ एंड एक्सप्लेन हाउ शी वॉज इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर हर एज्ड लुक्स, ओके, एंड हर लिविंग कंडीशन। एक दिन जब अपनी फ्रेंड जीन से मिलती है, जो कि अपने बच्चे के साथ जा रही थी, अपने चाइल्ड के साथ जा रही थी, तो उसने डिसाइड किया कि वो जाके पूरा ट्रूथ अपनी फ्रेंड को बता देगी, ठीक है, कि वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, इनडायरेक्टली अपनी एज लाइफ के लिए, ठीक है। जब वो अपनी फ्रेंड के साथ मिलती है तो उसकी फ्रेंड उसको पहचान नहीं पाती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एज्ड दिखती है उस टाइम पे, ठीक है। तो वो एक्सप्लेन करती है कि खुद ज़्यादा वो अपने आप रिस्पॉन्सिबल है उसकी एज लाइफ के लिए, ठीक है। और वो एक्सप्लेन करती है हाउ शी लॉस्ट द बोरोड नेकलेस एंड हैड टू टेक अ लोन फॉर रिप्लेसिंग इट। और वो अपनी फ्रेंड को बताती है कि किस तरह से उससे जो उन्होंने नेकलेस लिया था, ठीक है, वो उन्होंने क्या कर दिया था, गुम कर दिया था, ठीक है। और इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा लोन लेना पड़ा था उनके नेकलेस को वापस करने के लिए। ऑन हियरिंग दिस, जीन टोल्ड मेटिल्डा दैट द नेकलेस दैट शी हैड बोरोड वॉज फेक वन एंड वॉज नॉट वर्थ मोर देन 500 francs, ठीक है। और ये सब सुन के मेटिल्डा की जो फ्रेंड थी जेन, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा हैरानी होती है, ठीक है। और मेटिल्डा को बोलती है कि आपने पहले क्यों नहीं बोला, ठीक है, क्योंकि वो जो नेकलेस था वो फेक था, ठीक है, डुप्लीकेट था, और वो 500 franc का ही आया था, ठीक है। और इस तरह से मेटिल्डा यहाँ पे एक बड़ा लेसन सीख जाती है, ठीक है। अब वो एक अच्छी लेडी बन जाती है, लेकिन इसके साथ साथ वो अपनी ब्यूटी खो जाती है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओके। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। थैंक्स फॉर योर काइंड अटेंशन. So see you soon in my next video. Till then, bye. Take care.